So Miss Jayashree, the manager of Tata Mutual Fund, submits the following information. So she is a manager. She submitted the following information. And what are the information? See, at the beginning of the year, that is opening, remember it, these all the data are opening data, and we want what? Closing, because we have to calculate current year data. Current means closing data. अभी का कैलकुलेट करना ना एनएवी करेंटली, तो उसके लिए क्लोजिंग डेटा चाहिए. तो क्लोजिंग बेटा क्लोजिंग डेटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? सेम ओपनिंग डेटा की जरूरत पड़ेगी ना. यस. सो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फर्स्ट number of outstanding units 1 crore of rupees 10 each. Okay, outstanding units are 1 crores of rupees 10 each. Okay, units कितना है अपने पास? 1 crore, याद रखो, of rupees what? 10 each. ठीक है. Then what is given? Investment at a cost rupees 10 crores. Investment का क्या बोल रहा है? At a cost rupees what? 10 crores. Market value is 16 crores. Now investment at a cost. Investment at a cost rupees what बेटा? Yes, 10 crores. याद रखना कितना है इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट? कितना बेटा? 10 crores and market value 16 crores. And you all know that in mutual fund, while calculating NAV, investment का क्या कंसिडर करते हो आप? मार्केट वैल्यू. You all know, right? So investment भी आपको दिया है. Okay, no problem. चलो, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 5 करोड़. ठीक है, लाइबिलिटी का भी ओपनिंग बैलेंस दिया आपको. आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इज 5 करोड़. ओके, नाउ सी, with respect to this additional information which is given here, additional information, we have to find out what NAV. So, due to this, right, you can calculate easily your closing data also, and after that easily find out your NAV. राइट है, देखो इधर दिया मैंने एनएवी फाइंड आउट करके, एकदम बड़े में दिया, फाइंड एनएवी. ठीक है, तो देखो, सी फर्स्ट डेटा इज व्हाट? 20 lakh units were sold during the year at rupees 24 per unit. Okay, 20 lakh units were sold. इधर सोल्ड मतलब क्या हो गया भाई? वो टाटा म्यूचुअल फंड ने सोल्ड किया, मतलब पब्लिक में सोल्ड किया है, मतलब इशू किया है. याद रखना, ये सोल्ड मतलब क्या हो गया बेटा? इशू. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, ये आपका इशू है. ठीक है. इसने सोल्ड किया है, 20 लाख यूनिट्स वेयर सोल्ड. टाटा म्यूचुअल फंड ने, टाटा म्यूचुअल फंड ने सोल्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर एट रुपीज 24 पर यूनिट. तो इसने पब्लिक में सेल किया. पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक क्या करेगी? सब्सक्राइब करेगी. पब्लिक क्या करेगी बेटा? सब्सक्राइब करेगी, परचेस करेगी. क्लियर है? और म्यूचुअल फंड को पैसा मिलेगा. फिर म्यूचुअल फंड को पैसा मिला तो वो म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंगली अपना इन्वेस्ट करेगा. देन secondly, no additional investment. What? No additional investment. So no additional investment were made during the year. कोई additional investment made नहीं किया है during the year. 50% of investment held at the beginning of the year were quoted at 80% of book value. Now what is given here? No additional investment were made during the year. कोई additional investment नहीं हुआ है during the year. Now 50% of investment held at the beginning of the year were quoted at 80% of book value. तो इसका calculation करना है अपने को. We will do the calculation that how to find out the value, right? Then third one, 10% of the investment declined permanently 10% below cost. याद रखना, इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो मालूम पड़ेगा. 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 10% डिक्लाइंड हो गया परमानेंटली 10% बिलो कॉस्ट, मतलब जो भी कॉस्ट होगा उसके 10% बिलो. ओके, वो भी करेंगे, उसका भी वर्किंग्स करेंगे हम लोग, फिर समझ जाएगा, डोंट वरी. क्योंकि ये प्रैक्टिकल बताने के बाद ही जब कैलकुलेशन करूंगा तो इजीली समझेगा.
Then outstanding liabilities at the end of the year were 1 crore. अभी देखो पहले कितना था आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 5 crore था, राइट है. नाउ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इज व्हाट 1 crore. Now outstanding liability is what beta 1 crore. Okay, so this is what your outstanding liability for the closing. अभी का outstanding liability है 1 crore. Okay, now remaining investment were quoted at rupees 13 crores. Now what is given? Remaining investments, जो भी आपका remaining investment रहेगा that will be quoted at rupees 13 crores. ठीक है, remaining investment. तो ये पूरा कैलकुलेशन करना है, बराबर है. सम में बोला ना, थोड़ा भी एडजस्टमेंट में आपने मिस्टेक किया तो पूरा गया, इसलिए ध्यान से समझना. स्टेप बाय स्टेप में कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना. किधर भी डाउट होगा तो तुरंत मेरे को पूछो, अनम्यूट करो या चैट बॉक्स में मैसेज डालो, राइट है. बट ये इसका स्टेप समझो क्या है इसमें, ठीक है. तो हमेशा याद रखना, डेटा दिया है जयश्री द मैनेजर ऑफ टाटा म्यूचुअल फंड, ठीक है. उसने किया है सबमिट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और उसके एडजस्टमेंट के बेसिस पे देखो एडजस्टमेंट के बेसिस पे उसने 20 लाख नया इशू किया, सोल्ड किया म्यूचुअल फंड ने. मतलब क्या, यहाँ सोल्ड मतलब क्या हो गया, उसने इशू किया, बराबर है. उसने इशू किया तो पब्लिक खरीदेगी. पब्लिक क्या करेगी, खरीदेगी, नॉर्मल सी बात है. मालूम पड़ा, अभी म्यूचुअल फंड इशू कर रहा है, मतलब क्या, पब्लिक खरीदेगी, तो म्यूचुअल फंड का तो लाइबिलिटी बनेगा ही ना. उसके बाद म्यूचुअल फंड वही यूनिट्स जो उसने इशू किया था और पब्लिक से पैसा मिला, वो क्या करेगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करेगा, बराबर है. उसी से तो उसका इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है ना. अब वो इशू करेगा ही नहीं, यूनिट इशू करेगा ही नहीं, तो पब्लिक से पैसा मिलेगा किधर से. और जब पब्लिक से पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, समझा कि नहीं. तो वो फंडा है, ये अपना क्वेश्चन है. अब इसके बेसिस पे वी हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. क्लियर, डायरेक्टली सॉल्यूशन. टाटा म्यूचुअल फंड, ओके. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड, एट द एंड क्लोजिंग वाला, बराबर है. ओपनिंग का सब डेटा दिया है, क्लोजिंग का फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो देखो अभी जरा ध्यान देना क्वेश्चन में. सी, अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग डेटा क्या है अपने पास, राइट है. तो ओपनिंग डेटा आपके पास देख रहे हो, ये तीनों आपके ओपनिंग डेटा है, ओके. अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग 1 crore ऑफ रुपीज 10 each, ठीक है. इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट रुपीज 10 crores. इन्वेस्टमेंट कितना बेटा, एट कॉस्ट रुपीज 10 crores. इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 crores. और आपका मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज योर मेन पर्पस, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड. You have to find out what market value of investment at the end, right? So 10 crores का cost है, market value इधर total दी है 16 crores, but this is what, ये आपका opening value है, opening, right है. और ये outstanding liabilities है. अब ठीक है, ये तो opening value है. Now see, अब इसके बेसिस पे क्या क्या चेंजेस हुआ है, आखिर इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस देखो, और अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट योर क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट. तो देखो सबसे पहला चेंजेस क्या है, यहाँ देखो, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वेयर मेड. ओके, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, ठीक है. नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो है वही है. नाउ व्हाट इज गिवन, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वेयर कोटेड एट 80% ऑफ बुक वैल्यू. याद रखना क्या बोल रहा है, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट held at the beginning of the year were quoted at 80% of book value. अब देखो इन्वेस्टमेंट है कितना अपना, इन्वेस्टमेंट है 10 crores. इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है, ये तो मार्केट वैल्यू दिया ब्रैकेट में, बट इन्वेस्टमेंट फिलहाल कितना है, कैलकुलेशन करने के लिए तो फिलहाल आपको कॉस्ट ही कंसिडर करना पड़ेगा. तो 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग. अब कितना इन्वेस्टमेंट था अपना, देखो इधर 10 crores का इन्वेस्टमेंट है. अब क्या बोल रहा है, उसका 50%, जो 50% है ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कोटेड एट, कोटेड मतलब अब उसका वो जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बराबर, जो कॉस्ट दिया है अपने को 10 crores, उसका मार्केट वैल्यू कितना होगा, 80% ऑफ बुक वैल्यू.
उसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 80%, तो इंटू 80% कोट होगा, वो कितना कोट होगा बेटा 80% कोट होगा। तो 80% कितना आ रहा है 10 करोड़ का 50%, पहले तो इन्वेस्टमेंट 50% ले लो बराबर, तो कितना हो गया 5 करोड़। अब 5 करोड़ का 80% कोट किया तो कितना आ रहा है बेटा, यस वेरी गुड बेटा 4 करोड़, राइट करेक्ट। तो सबसे पहला कैलकुलेशन तो ये आ गया, वेरी गुड सिद्धेश, ठीक है ये आ गया सबसे पहला कैलकुलेशन 4 करोड़। तो ध्यान देना एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन करना एकदम, ठीक है ध्यान से एकदम। तो पहला कैलकुलेशन तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का 4 करोड़, ठीक है। अब नेक्स्ट भी क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिक्लाइंड परमानेंटली 10% बिलो कॉस्ट, सेम वही। अब क्या बोल रहा है 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अभी इन्वेस्टमेंट कितना है अपना 10 करोड़ है, ठीक है। अब उसका 10%, अब 10 करोड़ का 10% कितना हुआ 1 करोड़, बराबर है 1 करोड़। अब 1 करोड़ भी क्या बोल रहा है, जो 1 करोड़ है वो परमानेंटली 10% बिलो कॉस्ट हो गया, परमानेंटली 10% बिलो कॉस्ट। तो इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा अभी, जब 10% रिड्यूस हो गया तो कितना होगा, अभी होगा कितना इन्वेस्टमेंट 90%। भाई 10% रिड्यूस हो गया, बिलो कॉस्ट हो गया, तो अब कितना रहेगा वो, दैट विल बी ओनली 90% ना, है कि नहीं 90%। तो अब निकालो जरा 10 करोड़ का 10% 1 करोड़, 90% कितना होगा 0.9, यस 0.9 CR, वेरी गुड बराबर है, करेक्ट है 0.9 CR मतलब 90 लाख, यस बेटा वेरी गुड बेटा, ठीक है ये भी हो गया आपको क्लियर है। देखो देखो एक एक करके करना है पूरा एडजस्टमेंट्स, वेल डन प्रियंका, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन, ये भी हो गया 10% इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन परमानेंटली 10% बिलो कॉस्ट। अब देखो परमानेंटली 10% बिलो कॉस्ट, तो 10% तो रिड्यूस हो गया ना, तो इन्वेस्टमेंट कितना बचा 90% ही बचा ना, तो अपने को तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चाहिए ना, तो 90% ले लिया, कितना आ गया 0.9, ठीक है। और कुछ है क्या एडजस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग, यस रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वेर कोटेड, कोटेड मतलब वही मार्केट वैल्यू, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कोट क्या होगा कौन से प्राइस पे 13 करोड़। तो अब रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितना बोल रहा है, रिमेनिंग 13 करोड़, 13 करोड़। इसका मतलब अपना टोटल मार्केट वैल्यू अब कितना हो जाएगा, इसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया अपने पास देख लो, 4 करोड़ प्लस 0.9 प्लस 13 करोड़ कितना हो गया मार्केट वैल्यू, पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 13 प्लस 4 कितना हो गया 17 प्लस, हाँ 17.90 crores, that's it, so this is the market value, बराबर है क्लियर है, यस सिद्धेश वेरी गुड हर्ष क्लियर। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे प्रॉपरली आपको शो करना है। तो देखो अब मैं शो करता हूँ, ये अपना क्वेश्चन के बेसिस पे समझा दिया मैंने, चलो नाउ लेट्स सॉल्व इट। आ जाओ, नाउ विल गोइंग टू प्रेजेंट इट हियर। सबसे फर्स्ट आ जाओ दिखा देते हैं, चलो। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या बोल रहा था फर्स्ट अपने को, 10 करोड़ का जो वैल्यू है 10 CR इनटू व्हाट, उसका 50%, 50% रिड्यूस होके कितना हो गया, कितने पे कोट किया 80%, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको समझाया प्रॉपरली एकदम पूरा एडजस्टमेंट में दिया, ध्यान से पढ़ना है। देखो ये वाला नो एडिशन इन्वेस्टमेंट मेड, ठीक है। 50% of investment held at the beginning of the year were quoted at 80% of book value, quoted at what 80% of book value, so quoted at 80%, बराबर है 80%, 80% इधर लिख देता हूं मैं कोटेड, तो कितना आ जाएगा दिखा दो, इधर ऊपर मैं लिख देता हूँ रुपीज इन करोर्स, रुपीज इन करोर्स, तो कितना आ रहा है बेटा
यस 4 करोड़। ठीक है। सेकेंडली अब क्या बोल रहा है, 10 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय, सेकेंड वाला क्या था, 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो कि परमानेंटली रिड्यूस हो गया 10% से, तो परमानेंटली 10% से कम हो गया, मतलब कितना वैल्यू बचा, 90%। दैट इज व्हाट 90%। ओके, सो इसका कैलकुलेशन किया था तो हमको कितना मिला था, 0.90। 0.90 crores means 90 lakhs. It is what, 90 lakhs, nothing but 90 lakhs, man, and women also. Chalo, next. After that, what remaining investment quoted at? Remaining investment quoted at, ये कितना है, 13 करोड़। Remaining investment quoted at 13 crores. That's it. चलो, finally total ले लो. What is the total? Yes, 17.90 crores. तो सबसे मेन कैलकुलेशन अपना यही है इन्वेस्टमेंट का, समझा कि नहीं, सबसे मेन कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट का है। यस, एल्डर मीनाक्षी, सुनीता, वेरी गुड, याद रखो सबसे मेन कैलकुलेशन अपना। नाउ सी, अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना होगा, देखो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट इज गिवन एट द बिगिनिंग, दैट इज 1 करोड़, 1 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एडिशनल इशू किया म्यूचुअल फंड ने 20 लाख, तो कितना हो गया, 1 करोड़ तो पहले से है, प्लस एडिशनल इशू कितना है 20 लाख, मतलब 0.2 करोड़, तो कितना हो गया 1.2 करोड़। तो अब अपना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यूनिट्स जो है वो कितना हो गया 1.2 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ तो पहले से ही है, प्लस 20 लाख न्यू इशू किया, तो 1.2 करोड़ हो गया ना बेटा। दैट्स इट, दैट इज द फंडा एंड नथिंग एल्स, बस याद रखने का, ठीक है। यस बेटा, वेल डन धीरज, विनेश। तो बस उसको दिखाते हम लोग, प्रेजेंट करते, कैसे प्रेजेंट करोगे, आ जाओ थोड़ा प्रेजेंट कर लेते इसको। तो इधर ही प्रेजेंट कर दूं नीचे, चलो इधर ही करता हूँ। ये हो गया अपना मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी नीचे इधर करते हैं हम, क्या, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग units at the end of the year, at the end of the year. Number of outstanding units at the end of the year. इधर भी अपना क्या आ जाएगा, यूनिट्स, यूनिट्स किस में रहेगा, इन क्रोर्स। यूनिट्स इन क्रोर्स, ठीक है। चलो, सो वेरी फर्स्ट, what number of units at the beginning, number of units at the beginning मतलब ओपनिंग में, at the beginning, that is what 1 करोड़, वो तो था ही 1 करोड़, राइट है। देन उसके बाद क्या करना है अपने को, एड अप, then what we have to do, add what, units issued, ये म्यूचुअल फंड ने सोल्ड किया, मतलब म्यूचुअल फंड ने इशू किया, इशूड, इधर लिख देते सोल्ड,
unit issued or sold at the rate what 24 per unit. पर यूनिट तो कितना आ गया. अब यूनिट इशूड एट ये 24 पर यूनिट का तो अपने को कुछ लेना देना है ही नहीं, तो ये जाने दो, नहीं तो इससे कंफ्यूज हो जाओगे. तो ये 24 पर यूनिट का कोई लेना देना नहीं है अपने को फिलहाल. अपने को यूनिट्स ही चाहिए ना, तो यूनिट्स ही लिखो, नहीं तो पकड़ में कंफ्यूज होगा 24 से क्या मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है. ठीक है, इसलिए हटा ही देता हूँ इसको. यूनिट इशूड तो कितना यूनिट इशू किया था आपने 0.2. 0.2 मतलब 20 lakhs. 20 lakhs ये रुपीज इन करोड़ है ना सब, तो 20 लाख को क्या बोलेंगे 0.2 करोड़. ठीक है, जिसको ऐसा डाउट रहेगा पूरा लिखने का, फिर 1 करोड़ मतलब 70 लगाओ. ठीक है, और 20 lakhs मतलब 20 लिख के जीरोस लगाओ 50. चलो तो टोटल कितना आ गया अपने पास, दिखा दो. सो ये हो गया अपना 1.20. ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स भी आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ गया. ये ऊपर अपना क्या हो गया था, एमवी ऑफ इन्वेस्टमेंट. एमवी ऑफ इन्वेस्टमेंट था, ये अपना क्या है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स एट द एंड. नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स एट द एंड. ठीक है, चलो ये ही सबसे मेन कैलकुलेशन है. अगर ये हो गया तो सब हो जाएगा. इसमें जरा भी मिस्टेक किया तो गया पूरा, याद रखना. तो इधर ध्यान देना. अब उसके बाद आ जाओ, फटाफट अपना कैलकुलेट कर लो. फिर उसके बाद क्या निकालना है अपने को, एनएबी, नेट नेट असेट वैल्यू, दैट इज एनएबी. ठीक है, चलो अभी एनएवी का फॉर्मूला क्या यूज होगा इधर अपने पास क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है. असेट में क्या है, सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है, ओनली मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. लाइबिलिटीज में क्या बेटा अपने पास, देख लो, लाइबिलिटीज में अपने पास क्या दिया देख लेने का. नाउ माइनस लाइबिलिटी में आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी. देख लो इधर मैं दिखा रहा हूँ, सी हियर, दिख रहा है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज. ये मत देखो, ये तो ओपनिंग का है ना 5 करोड़. इधर देखो, इधर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एट द एंड. करंट का क्लोजिंग का कितना है, 1 CR है ना, तो 1 CR. आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एट द एंड, दैट इज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी करके दिया. सो दिखा दे रहा है, outstanding liabilities divided by what, number of outstanding units. Number of outstanding units. ठीक है, चलो आ जाओ. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया था अपना, ₹17.90 करोड़. ठीक है, माइनस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आपका कितना था, 1 करोड़, डिवाइडेड बाय व्हाट, यूनिट्स कितना है 1.2 करोड़ यूनिट्स. ठीक है, चलो ये माइनस किया तो कितना आ गया 16.90 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.20 करोड़ यूनिट्स.
ये अपना यूनिट्स है, ठीक है। फाइनली व्हाट विल बी द आंसर, 40 कितना 14 पॉइंट, ओके 14.08, okay 14.08 per unit. So this is what your closing बोलते हैं, जो NAV आया 14.08. वेल डन साक्षी, हर्ष, इनका वेरी गुड एवरीवन, शाबाश मनीषा, वेरी गुड विदिशा, वेरी गुड, ठीक है याद रखना, वेल डन धीरज, ओके। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट, सो ये हो गया अपना NAV, ठीक है, दिस इज व्हाट आर NAV. NAV per unit we got it, that is 14.08 per unit. That's it, done. समझ गया, मालूम पड़ा कैसे करना है, ओके क्लियर है एवरीवन। तो याद रखो कैलकुलेशन मेन आपको अपने माइंड में रखना है, कैलकुलेशन का पार्ट क्लियर नहीं तो देखो क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट्स का फंडा, जो इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं, क्लोजिंग में एडिशनल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ध्यान देने का। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला था उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है कि भाई 10 करोड़ का वैल्यू था उधर, जो कॉस्ट है 10 करोड़ का है बुक में, ठीक है। तो 10 करोड़ का वैल्यू है, तो उधर बोल रहा है 10 करोड़ का 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 10 करोड़ का 50%, उसको आपको 80% पे कोट करना है, मतलब उसका मार्केट वैल्यू हो जाएगा 80%। तो दिखाने का जो 10 करोड़ है उसका 50%, फिर उसका 80% 4 करोड़ आ गया, दैट्स इट, बराबर है। तो उधर गलती से भी जो ऊपर बिगिनिंग में दिया है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू कंसिडर मत करना, कैलकुलेशन कर रहे हो ना आप, एडिशनल एडजस्टमेंट है, उसका जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे न्यू जो करंट में मार्केट वैल्यू है वो कितना कोट होगा, तो उसके बेसिस पे हमारा ये कैलकुलेशन था। फिर बोला कि 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब 10 करोड़ का 10% वो परमानेंटली 10% से रिड्यूस हो गया, परमानेंटली 10% से रिड्यूस हो गया, तो परमानेंटली 10% से रिड्यूस हो गया मतलब कितना हो गया 90%, तो 90% हो गया, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बोला ही है कि 13 करोड़ पे दिखाया। तो अब जाके क्लोजिंग में मार्केट वैल्यू कितनी हो गई आपकी 17.90 करोड़। अब ओपनिंग में मार्केट वैल्यू देखो कितना था, ब्रैकेट में देख सकते हो आप 16 करोड़ था, अभी 17.90 करोड़ हो गया, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स पहले 1 करोड़ था, और म्यूचुअल फंड ने नया इशू भी किया है, पब्लिक में सेल किया है यूनिट्स, तो उससे 0.20 और आ गया, तो 1.20 हो गया। बस इतना करके फिर अपना नॉर्मली बस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, फॉर्मूला यूज करो और NAV कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यही है बेटा इस